afternoon to all. Welcome to the lecture series on renewable energy resources of final year BTech syllabus. It's an optional elective subject, but one of the most important subjects to be dealt in the energy scenario in the current world. Hi, I am Rahul Virmani. I am Senior Assistant Professor in Department of Electrical and Electronics Engineering at ABES Engineering College, Ghaziabad. Now, this lecture is all about the introduction to the renewable energy, and I've also added on my part an Indian perspective so that we can take the better look on the energy scenario in the Indian subcontinent. Now, let us start with what is the renewable energy source. The renewable energy is basically the energy that uses energy resources that are being replenished by the nature itself. For example, the sun, the wind, the water, the earth, heat and plants, these all are replenished by the nature itself and hence are called the renewable energy resources. Now, renewable energy resources can either be directly or indirectly be used for the energy demands by the human nature or mankind, I would say rather. Now, in the renewable energy technologies are basically a technology which convert these fuels into the usable form of energy. Now, the most often that when you talk about the usable form, we generally talk about the electrical energy, but also the heat, chemical or the mechanical energy can be derived from these renewable resource energy. Now, basically the energy usage is held in four sectors. One is the domestic sector, other is the transportation sector, third is the agriculture sector, and fourth is the industrial sector. When we talk about the domestic sector, we means the buildings of the residential as well as the commercial complexes. We talk about the transportation sector, we deal with all the kind of basically the metro, we deal with the rail and all kind of things. Agriculture sector is self-understood word in itself. Here we are dealing with the agriculture demands for where the demands are used for the pump, for the irrigation, for the transportation, for the cutting, for the cropping, for every other thing. Now, industrial sector we all know for the production, maintenance and service engineering. Now, as per the global economy trends are changing, there is a new index which is referred as per capita energy consumption index. It is referred as per capita energy consumption index, which refers to that higher is the energy consumption per capita in a country, the prosperous that nation is. Now, coming for the India as per the global scenario, India is currently 104th in per capita energy consumption index. Now, you might be thinking that it is quite low, but if we come to the global scenario of consumption of energy, we are the third largest energy consuming country. That makes us one of the largest demand suppliers of the electrical energy. Now, the 80% of the demand is still being met by the coal, oil and the solid biomass. But basically, if on the global average we are seeing that the energy use are less than half of the world. That makes us very simplifying reason that why we are still 104th, although we are actually the third position consuming the electrical energy. Now, this is global energy scenario. In the global energy scenario, you can easily see that oil is being used 33%, the coal is being used by 27%, gases are being used by 21%, nuclear is lagging behind 6%, 2% hydro, solar, wind and other renewable are still accounting for only 11% of the total energy generation. Whereas if we come to the Indian scenario, the things are a bit different. 61% of the electrical energy, I would say. When we talk about the word installed capacity, I am talking about the power production. And when you are talking about the power production, I basically mean to say the generation of electrical energy. हम बात करेंगे किसके बारे में? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में.
ठीक है जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में बात करना शुरू करते हैं। तो 61% ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच इज बीइंग जनरेटेड इज बीइंग जनरेटेड थ्रू द कोल, 15% is still being done by hydro, 13% is through renewable sources, 9% is through natural, and nuclear accounts for the rest of it, which is approximately 3 to 4% only. Now, India is the only country to have a separate ministry for the development, for the exploration of the for the renewable energy resources, and that is known as MNRE. That is one of that in ministry. Ministry for Natural Energy Resources is one of those resources, is one of those ministries. It is first of its kind to be established for just for the sake of renewable energy development. Now we are talking about the classification of energy usage. The classification of energy usage, we will talk about the primary resources first thing. It is based upon what? The usability of energy. Now basic upon the usability of energy, if we talk about, we will talk about primary resources, intermediate and secondary resources. Primary resources are those which can be directly used, while intermediate and secondary resources are which are derivatives. Now for example, if you have got sun, now the sun is there, if you want to use it for heat, it is being directly used, but it is being, if it is being used for generation of electrical energy, it is one of the secondary. Now based upon the traditional use, conventional energy resources and non-conventional, as the word suggests, conventional means that the technology for using them efficiently is being there, has been there in space, has been there in the market for a longer period of time. Example are thermal, hydro, gas, nuclear. There are a lot of examples for the basically the conventional energy resources. Now if we talk about the non-conventional energy resources, we come to those sources which are the technology for which is being still in the developing phase. अभी भी उस पे development हो रहा है. जैसे कि one of those is tidal energy. It is one of those. Solar energy is one of that example right now. मगर solar के बारे में technology already बहुत ज़्यादा develop हो चुकी है, and it has been there for almost 20 years or so, but still in the part of non-conventional, we can soon be seeing the solar transfer to the conventional. Now based upon the long-term availability, that there's third criterion, it is being divided into non-renewable energy resources and renewable energy resources. जैसे कि मैंने शुरू में बताया था, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज वो होते हैं जो अपने रिसोर्स को खुद फुलफिल नहीं कर पाते, और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज वो होते हैं जिसकी अपनी रिसोर्सेज को खुद फुलफिल कर लेते हैं. रिप्लेनिश वर्ड यूज करा गया था. विच आर बीइंग रिप्लेनिश्ड बाय द नेचर आर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, विच कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड बाय द नेचर आर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज. नाउ बेस्ड अपॉन द कॉमर्शियल एप्लीकेशन, जिस एनर्जी रिसोर्स को आप मार्केट में कॉमर्शियलाइज करके बेच सको. एग्जाम्पल वुड, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है. बहुत सालों से लकड़ी बिकती चली आ रही है फॉर वेरियस पर्पसेस, फॉर डोमेस्टिक एज वेल एज फॉर अदर पर्पसेस. नाउ इट इज वन ऑफ दोज एनर्जी रिसोर्स व्हिच कैन बी कॉमर्शियल, व्हिच इज एक्चुअली इजीली कमर्शियलाइज. मगर वहीं अगर मैं एनिमल डंग की बात करूं, तो दैट इज नॉट स्टिल नॉन कमर्शियलाइज, क्योंकि उस पर कमर्शियल स्केल पे उतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाया है कि हाउ टू प्रिजर्व द एनिमल डंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. ऑल्दो मेकिंग डंग केक्स, जिसको आप गोबर का कंडा बोलते हो या उपला बोलते हो, एक टेक्नोलॉजी है, मगर अभी भी वो बहुत ज्यादा हद तक कॉमर्शियलाइज नहीं हुई है. अब ओरिजिन की अगर मैं बात करूं, बेस्ड अपॉन द ओरिजिन, तो उसके अंदर मैं कई सारी कैटेगरी में बात करूंगा. पहले मैं बात करना चाहूंगा फॉसिल फ्यूल एनर्जी. फॉसिल फ्यूल एनर्जी में आपको पता होना चाहिए, कोल एंड ऑयल, जो भी ऑयल निकले, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स निकले, और यहां तक कि एंड नेचुरल गैस इटसेल्फ, ये सारे के सारे जो भी हैं ये आपके फॉसिल फ्यूल एनर्जी है. न्यूक्लियर एनर्जी वो है जो कि आप न्यूक्लियर प्लांट्स में यूज करते हो. हाइड्रो इज बेसिकली द पावर ऑफ रिवर्स. ठीक है. सोलर एनर्जी रिफर्स टू द एनर्जी गिवन बाय सन. विंड एनर्जी गिवन बाय विंड. बायोमास एनर्जी गिवन बाय बायोमास. बायोमास का मतलब सिंपल सी बात मैं बात करूं, एनिमल, plants and their waste. Animals,
प्लांट्स एंड देयर वेस्ट। ठीक है जी। जियोथर्मल, एज द वर्ड सजेस्ट, जियो स्टैंड्स फॉर अर्थ, थर्मल स्टैंड्स फॉर हीट। मतलब ये क्या है? हीट फ्रॉम द अर्थ। ठीक है जी। टाइडल एनर्जी रिफर्स टू द टाइड्स इन ओशन। Ocean thermal energy is basically the heat energy which is stored in the at the bottom of the ocean. I would rather say ocean wave energy is energy of the waves in the. ठीक है जी। Now if we are coming to the salient features of the renewable energy resources, one is that basically they are available in nature free of cost. They may produce no or very little pollution, and thus by large they are environment friendly. They are inexhaustible. Practically inexhaustible. They have low gestation period. When we talk about the gestation period का मतलब ये होता है, सिंपल सी बात है कि प्लानिंग टाइम कितना लग रहा है। प्लानिंग टाइम और प्लानिंग टाइम कब तक का? जब तक कि आप पहला फर्स्ट प्रोडक्शन ना शुरू कर दो। क्या ना शुरू कर दो? फर्स्ट प्रोडक्शन। तो बेसिकली इन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के लिए जेस्टेशन टाइम बहुत लो है। क्यों? आपको दिख रहा है किसी पोर्शन पे सन आ रहा है, किसी पोर्शन पे आपको सोलर एनर्जी प्रॉपर मिल रही है, तो आप वहां पे पैनल लगाइए, अपना काम करिए। सिंपल सी बात। तो जेस्टेशन पीरियड इज वेरी लो। अगर वहीं मैं डीमेरिट्स की बात करूं तो दिस एनर्जी इज प्रोड्यूस इन वेरी डाइल्यूट फॉर्म। डाइल्यूट फॉर्म का मतलब सिंपल सी बात है, मैं बात कर रहा हूं एनर्जी डेंसिटी की। एनर्जी डेंसिटी इन रिसोर्सेज की बहुत लो होती है। ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है? अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे लेके चलूं तो अगर मैं आपको बोलूं कि आपको 1000 किलोवाट का प्लांट बनाना है सोलर का, तो करीब वो 2 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैलेगा। या आप खुद सोचो कि कितना ज्यादा या कितना कम आप एरिया यूज कर रहे हो। जितना छोटा एरिया उसकी एनर्जी डेंसिटी उतनी ज्यादा। जैसे कि एक बैटरी, एक छोटी सी बैटरी, अगर मैं बोलता हूं कि एक छोटी सी बैटरी आ रही है, तो कितने लंबे समय तक एनर्जी देती है और कितनी ज्यादा एनर्जी देती है, उसकी एनर्जी डेंसिटी हायर है। अगली बात होती है, ऑल्दो बीइंग अवेलेबल फ्रीली इन नेचर, द कॉस्ट ऑफ हार्नेसिंग एनर्जी फ्रॉम दीज रिन्यूएबल रिसोर्सेज इज जनरली हाई। इस पॉइंट पे मैं थोड़ी सी बात बोलना चाहूंगा। देखिए, कभी भी आप कोई भी रिन्यूएबल रिसोर्स के बारे में बात करिए, चाहे आप विंड के बारे में बात करिए, चाहे आप हाइड्रो के बारे में बात करिए, चाहे आप सोलर के बारे में बात करिए, इनको पूरा का पूरा सेटअप लगाने की जो कॉस्ट है, इंस्टॉलेशन की जो कॉस्ट है, वो बाकी और भी तरीके हैं प्रोडक्शन के, उनसे बहुत हायर है। मगर एक चीज और अच्छी है कि सिंस इसके अंदर ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत कम लगती है, क्योंकि फ्यूल ऑलमोस्ट फ्री है। चाहे सोलर की बात करिए, चाहे विंड की बात करिए, चाहे आप हाइड्रो की बात करिए। हाइड्रो के अंदर पीछे से पानी आना है वो आता ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। तो जब पीछे से पानी आना है वो आता ही रहेगा, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, उसका जो फ्यूल है वो ऑलमोस्ट आपके लिए फ्री है। ठीक है। अवेलेबिलिटी इन अनसर्टन, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि अगर मैं एग्जांपल लेता हूं सोलर विंड का, तो अगर सपोज बारिश हो गई तो सोलर तो ऑलमोस्ट गया ना, तो ये तो अनसर्टन हो गया ना। हम लोग इसकी कॉन्टिन्यूस अवेलेबिलिटी भी स्टिल क्वेश्चनेबल है, और आज भी लोग इस पे बात कर रहे हैं कि जब सोलर अनप्रेडिक्टेबल होता है, तो नाउ द टेक्निक्स आर बीइंग यूज्ड वाया मशीन लर्निंग, वाया अदर एआई टेक्निक्स, जिससे कि हम प्रिडिक्ट कर पाए कि उस पर्टिकुलर दिन पर कितना देर तक हमें उतना सोलर रेडिएशन मिलेगा, जिससे कि हम प्रॉपर जनरेशन कर पाए। ठीक है। दिस इज वन ऑफ द गुड एरियाज ऑफ रिसर्च राइट नाउ। और सबसे बड़ी बात यह, आप इस तरह की एनर्जी को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते इजीली। मैंने पहले ही बताया था, दीज आर द फॉर्म ऑफ नॉन ट्रांसपोर्टेबल एनर्जी। अब ट्रेड ऑफ की अगर मैं बात करूं, व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रेड ऑफ बिटवीन एनर्जी एंड एनवायरमेंट, देखिए एक बात तो हम सबको समझनी पड़ेगी कि ऐसा कोई भी एनर्जी सोर्स नहीं है जिससे बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं होगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ऐसा कोई भी एक भी एनर्जी रिसोर्स नहीं है जिससे बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं होगा। मगर आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि जितनी एनर्जी उस एनर्जी सोर्स से एनर्जी डिराइव करने के लिए ली जा रही है, समझिएगा। नाउ आई विल लाइक यू ऑल टू हैव अ रेशियो, इस एक कांस्टेंट होता है, इसको बोलते हैं यील्ड रेशियो। क्या होता है? यील्ड रेशियो। यील्ड रेशियो की अगर मैं बात करूं, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय सोर्स, amount of energy produced, ठीक है, बटे या डिवाइडेड बाय amount of energy
amount of energy spent to create that source या to basically exploit that source, to create that source. अब समझिएगा, मैंने बोला कोयला, मैंने बोला कोल, कोल से जितनी एनर्जी मिली, अगर कोल को निकालने में उससे ज्यादा एनर्जी कम खर्च हो रही है, इसका मतलब यील्ड रेशियो की वैल्यू 1 से नीचे आएगी. अगर यील्ड रेशियो की वैल्यू 1.25 से ऊपर नहीं है तो मेरे हिसाब से या इकोनॉमिकली वो एक फीजिबल सोर्स नहीं है. तो हम लोग को ये बात देखनी पड़ती है यील्ड रेशियो का. यील्ड रेशियो में दोबारा रिपीट करता हूं, यील्ड रेशियो कुछ नहीं है, एक छोटा सा रेशियो है जो कहता है कि किसी भी सोर्स से जो एनर्जी आउटपुट मिल रहा है, उस सोर्स को क्रिएट करने में जितनी एनर्जी हमने इनपुट करी, उसका फैक्टर रेशियो को क्या बोलते हैं? यील्ड रेशियो. ठीक है जी. अब यहां पर समझिएगा, अगर यील्ड रेशियो की बात मैं करूं तो यहां पे आप समझ रहे हैं हर सोर्स को पैदा करने के लिए एक अमाउंट ऑफ एनर्जी आप खर्च करते रहोगे. तो जब अमाउंट ऑफ एनर्जी आप खर्च कर रहे हो तो आपको यह बात समझनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है, जब एनर्जी खर्च हो रही है तो कुछ ना कुछ एनर्जी कन्वर्जन होगा, कुछ ना कुछ एनर्जी कन्वर्जन होगा तो कुछ ना कुछ हीट निकलेगी, कुछ ना कुछ हीट निकल रही है तो कुछ पॉल्यूटेंट्स निकलेंगे. मगर सिंपल सी बात यह है कि कितना आप टॉलरेट कर सकते हो. थर्मल की बात करें तो थर्मल के अंदर जिस प्रकार का कोल की क्वालिटी गिरती चली जा रही है, द डिग्रेडेशन ऑफ द कोल क्वालिटी, नाउ इट हैज कॉजिंग बेसिकली सिर्फ 35% एनर्जी आ रही है और 65% एश और अदर गैसेस में निकल रहा है. नाउ वी कैन नॉट टॉलरेट बिकॉज दिस इज एक्चुअली एक्सप्लॉइटिंग द मदर नेचर राइट नाउ. ठीक है. वेयर एज इन रिन्यूएबल सेक्टर दिस इज वेरी इजी. इनके अंदर जो यील्ड रेशियो आ रहा है इट इज वेरी हाई, so it can be easily be adapted to the new world, what I would like to say. Now this is one of those India का पूरा scenario मैंने देखा है. Now this is Puga is a place in Ladakh Valley. Now if I highlight that, Puga is a place in Ladakh Valley जहां पे हम लोग का एक जियोथर्मल प्रोजेक्ट बन रहा है. यहां पे बादला सोलर पार्क बना है राजस्थान में, एक जैसलमेर के अंदर विंड पार्क बना है, मध्य प्रदेश में एक रीवा का सोलर प्रोजेक्ट ये है, एक गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट लगा है, बमनवेल में विंड फार्म लगा है, वंसपवाड़े में विंड फार्म लगता है, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के अंदर सोलर पार्क्स खूब सारे लग चुके हैं. तो और जनरली जब भी हम लोग बात करते हैं इस तरह के, लोगों के दिमाग के अंदर पहली जो परसेप्शन आता है वो ये आता है कि सोलर पार्क मतलब कि भाई राजस्थान और गुजरात. ऐसा नहीं है. हम लोग को सिंपल सी बात है, हम लोग को जहां भी रिसोर्स मिल रहा है हम लोग उस हिसाब से उसको अडॉप्ट करते चले जा रहे हैं. एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी, क्योंकि हमको पता है सोर्स है, जेस्टेशन पीरियड लेस है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट लगाइए, एनर्जी लेना शुरू करिए. सो क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह हम इसको डील कर सकते हैं. ऑल्दो देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ हाउ मच एनर्जी कैन बी प्रोड्यूस्ड इन पर डे ऑन द पर डे बेसिस, बट स्टिल द थिंग्स आर क्वाइट इन फेवर दैट इफ वी वांट अ बेटर एंड हेल्दी वर्ल्ड टुमारो, वी हैव टू स्विच टू द रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज. Now, the references for this lecture were Ministry of New and Renewable Energy Resources, which was accessed on 16 September, and a book named B.H. Khan on NCER. And thanks a lot. In the next lecture, we would be discussing about the solar energy, solar cell, their IV characteristics, how, upon what principles does a solar cell work to generate electricity. Thanks a lot. This is Rahul Virmani signing off. Bye.